All right. So, Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to seventh session of Bootcamp 101, which is about UI, UX, user interface, and user experience. And I'm really sorry again for the last time that we couldn't have a session due to have some more speaker working something. So today he's here already at a time. Thank you so much, sir, for coming. So Yeah, thank you. as you all, yeah. So as you all know that UI UX are some of the most confused and misused terms in our field. That UX design is all about the overall feel of the experience, while UI design is all about how the product interface, look, and functions. So in this session, we will be covering a few points and which will be related of UX. So the workshop of UX, the basic of UX, and the cover of UX play. And we have amazing speaker who will tell you all the stuff, details about UX, which is Mudassir Azimi. Thank you so much again for joining. And Mudassir Azimi has a 10 plus years of experience in UI UX. He is the lead instructor of the UI UX boot camp at UC Berkeley. And he is currently working on a mission critical application at Wells Fargo. So at the end of session, we will having a QA and a small quiz based off your knowledge, and the winner will get amazing prizes. So these are the little intro from my side. And sir, on your, you can start. Thank you. Thank you, Tatahir. Can I join my Assalamu alaikum, everyone? First of all, thank you again, and also apologize for the last time. थोड़ा कुछ काम आ गया था. So let me share my screen first. I am trying to see how can I. Can you make me presenter? Because I'm not a presenter now at the moment. No, you don't have to. You don't have to. Just click present now and you can share your screen. Yeah, it's not enabled at my end. Really? Yeah. Can you do it again? Can I join again? Yeah, sure. Yeah. Okay. Share the screen. Only first can share the screen. Yeah, you can now. Sorry, he is. Yeah. Okay, I think I got the option now. Let me Yeah. present. All right, there you go. And अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Red screen. Yes, we can. जबरदस्त. और अगर किसी को इशू है, किसी को स्क्रीन नजर नहीं आई, so I will ask कि आप rejoin करें, क्योंकि कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, तो please do rejoin. Okay, cool. ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, Foundation of UX. Yes. All right, good. Chalo, assalamu alaikum, everyone. First of all, thank you, Tatahir. And apologies for the last time. थोड़ा stuck हो गया था. तो thank you for introducing Tatahir. Normally तो presenter start होता है अपनी कहानी से कि मैं क्या था क्या नहीं था. Instead of doing this, I would like to know कि आप लोगों ने डेवलपर स्टूडेंट क्लब सुपीरियर यूनिवर्सिटी ज्वाइन क्यों की है और आज यहाँ क्यों आए हैं और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन जो अब हमारा होगा. So either you can chime in or you can talk to Tatahir, or Tatahir can read your message, because now I cannot see anything going on web browser पे. So Tatahir, if they have any सर मैं बताना चाहूँगा. बिस्मिल्लाह. सर बेसिकली हम अगर अपने कोर्स को देखें, अपने जो हमारा एक कोर्स डिफाइन होता है HEC की तरफ से, तो सर अगर तो हम उसे देख के हम आगे प्रोसीड करें अपनी डिग्री में, जो कि BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सर आई थिंक कि हम वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो इस टाइम मार्केट
की डिमांड है, फैक्ट्री की, जिस तरह लेट्स से कि कॉटलिन वगैरह, ये तो हमें कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, तो इन चीज़ों को सीखने के लिए बेसिकली DSC ज्वाइन की है। जबरदस्त। और इसमें डिजाइन थिंकिंग के बारे में या कभी यूएक्स के बारे में सुना हो, पढ़ा हो? यस सर। सर डिज़ाइन UX डिज़ाइनिंग जो है हमारे मेरे ख्याल से 7th या 6th सेमेस्टर में होती है, और अभी मैं 3rd सेमेस्टर में, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से वो डिज़ाइनिंग करूँ जो कि हम एक्स्ट्रा पे करके एक डिज़ाइनर हायर करते हैं और उसे हम पे करते हैं और उसके थ्रू हम वो डिज़ाइनिंग करवाते हैं। तो यानी कि आप यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं। यूनिकॉर्न वो बंदा होता है भाई, यूनिकॉर्न सही है, एक मिथिकल क्रिएचर है, कभी एग्जिस्ट नहीं करता, करता होगा किसी जमाने में, ख्याल उसी वक्त आता है जब कोई चीज एग्जिस्ट करती है, राइट? तो यूनिकॉर्न सिलिकॉन वैली में एटलीस्ट उसको कहते हैं जो डेवलपर भी हो और यूएक्स का बंदा भी हो और डेवलपमेंट में भी फ्रंट एंड का भी बंदा हो और बैक एंड का भी हो। बंदे से मतलब पर्सन है यहाँ पे, मेल फीमेल एवरीवन इंक्लूडेड, ठीक है भाई? तो थैंक यू। क्या नाम है भाई आपका? सर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान। जियाउर रहमान, ऑलराइट। अच्छा भाई, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे इस पूरी उसमें अपना प्रेजेंटेशन में? हम अनपैक करेंगे यूएक्स को कि असल में यूएक्स क्या होता है, वन लेयर एट अ टाइम, ऑलराइट? हम डीप डाइव करेंगे इनटू द वर्ल्ड ऑफ यूएक्स इसके बाद, और ये देखेंगे ये सारी कहानियां क्या है, ये सारा शोर क्या है, लोग क्या सीन ऑन क्या हुआ है। फिर ये है कि 10 से 15 स्लाइड में इसको हम अनपैक करेंगे। 10 से 15 तो ये खाली मैंने वाजबी से नंबर बताए, इसके साथ और बहुत सी स्लाइड्स हैं। और ये भी देखेंगे ये पाकिस्तानी वेबसाइट के साथ हो क्या रहा है, और हम कुछ अपना डेटा भी फिक्स करेंगे, आई मीन कुछ चीजें फिक्स करने की कोशिश करेंगे, हाइपोथेटिकली ऑब्वियसली, राइट? एंड देन यू कैन आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, और इसके बाद वी विल हैव एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ इट, ठीक है? साउंड्स गुड? यस सर। यस सर। ऑलराइट, हाँ ओके। अच्छा, ये पूरी मेरी प्रेजेंटेशन बेस्ड करती है इस किताब पे। किसने ये किताब पढ़ी है? हाँ, ना 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 भी चलेगा, अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। 5 सेकंड की खामोशी को मैं ना समझूंगा, ठीक है? नो सर। यस। ऑलराइट। तो असल में लोग क्या होता है प्रॉब्लम लोगों के साथ कि लोग जब यूआई का तस्करा करते हैं तो उसको ही यूएक्स समझते हैं। यूआई इज जस्ट अ पार्ट ऑफ यूएक्स, ऑलराइट? ये एक हिस्सा है लेकिन ये होल नहीं है। तो उसी की तरफ हम जाएंगे कि ये है क्या। अब ये जैसे जेम्स गैरेट कहता है कि experience design in the design is a design of anything independent of medium or across media with human experience as an explicit outcome and human engagement as an explicit goal. ये पर्पस होता है ह्यूमन एंगेजमेंट, ठीक है? इसका आउटकम ये होता है कि इसका आउटकम हमें ये बनाना पड़ता है कि यार ह्यूमन कैसे एंगेज करेगा मेरी कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो मैं रिक्शा बना रहा हूँ 2030 के लिए या मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर मोस्ट इज कि जब इंसान एक इस्तेमाल करेगा उसको तो उसका एक्सपीरियंस क्या हो, ये होता है यूएक्स। अब यूएक्स के अंदर होते हैं 5 प्लेन्स, ठीक है? और प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स कहते हैं जो फ्लैट सरफेस को, ठीक है? अब ये 5 प्लेन्स को आप समझ लें 5 फ्लोर होते हैं। एक यूएक्स बिल्डिंग अगर आप किसी के दिमाग में अगर यूएक्स फाउंडेशन रखना चाहेंगे तो ये 5 प्लेन्स की बुनियाद पे होगी। अब बिफोर वी जंप इन, टिपिकली क्या होता है हमारे जहन में कोई प्रोडक्ट आइडिया आता है, ठीक है? हमने बहुत सारी बातें सोची होती हैं कि इसमें ये भी होगा वो भी होगा, और हम फिर सेटल होते यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और आखिर में जाके हम लॉन्च ये कर देते, इतनी बड़ी कोई वेबसाइट रॉकेट ही लॉन्च कर दिया, कुछ चीजें हटा दी हमने कहा पता नहीं ये है। तो and then when we done with our design and all the begging to our friends and they also joined the part and then we end up with something what user don't need, यही होता है ना आखिर में। यूजर को तो साइकिल चाहिए थी, हमने बना के दे दिया इसके हाथ में रॉकेट। ये असल में सबसे बड़ा डिलेमा होता है अगर हम प्रॉपर यूजर रिसर्च ना करें, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना करें कि प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है। And I will do my best to unpack the UX and also, how can you set up yourself for success in your design endeavor and you won't be jumping right into Sketch or Figma. मतलब ये भाई कि जब
यूएक्स का काम आता है ना, तो स्केच और फिग्मा इज नॉट द राइट टूल एट फर्स्ट। पहले उस पे जो कुछ प्लेन्स हैं हम जो डिस्कस करेंगे उस पे, वो बाद में आता है, ठीक है? मेक सेंस? चलो, आई बेस माई प्रेजेंटेशन ऑन अ बुक नेम, एज आई सेड, पहले बोला था, एलिमेंट्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस बाय जेसी जेम्स गैरेट। यूएक्स जो है, इट्स नॉट अ प्रीटी फेस। इसको इस तरह समझो, एज अ ह्यूमन बॉडी, राइट? एज अ होल ह्यूमन बॉडी, एवरी सिंगल पार्ट इन योर बॉडी इज वर्किंग इन अ सिंक। सब चीजें आप अगर देखो, अपनी ह्यूमन बॉडी को देखो, तो आपकी सांस भी चल रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। और फिर जब आप कहते हो ये मैं हूं, यू आर, सो आप बेसिकली क्या कह रहे हो कि आई एम एवरीथिंग, आई एम ह्यूमन। जब मैं ह्यूमन की बात करता हूँ, जब इसी तरह प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब खाली स्क्रीन पे जो आ रहे हैं जबरदस्त खूबसूरत से स्टिकर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, इंटरफेस सिर्फ वो नहीं है, वो बैकएंड पे भी होता है कि बैकएंड किस तरह चल रहा है, फ्लो कैसे इंफॉर्मेशन का हो रहा है, तो वो हर चीज होती है शामिल। मिसाल के तौर पे योर फेस इज जस्ट वन थिंग दैट एवरीवन इज सीइंग। आपका फेस है, वो समझ लो यूजर इंटरफेस है, एंड देन योर बॉडी लैंग्वेज गेट ऑब्जर्व। अब फिर आप एक्शन करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी तरह यूआई इज जस्ट पार्ट ऑफ द यूएक्स, समथिंग विच वी ऑल सी एंड वी रिएक्ट अकॉर्डिंगली, बट देयर इज अ डेप्थ, इसमें गहराई है, और वो डेप्थ ही असल में यूएक्स है। अब हम इन्हीं प्लेन्स का जिक्र करेंगे कि जो सबसे, मैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाऊंगा, ठीक है? स्ट्रेटजी, स्कोप, स्ट्रक्चर, स्केलेटन और सरफेस। जब आप स्ट्रेटजी पे होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है। मुझे 2 मिनट देंगे? सॉरी, मेरा बेटा जाग गया है, सो गिव मी 2 मिनट, सॉरी यार। Is everything all right, sir?
Okay. All right. बैठे काम करें. Okay. Sorry guys. All right. Can you hear me all? Hello. Yes sir. Okay. All right. तो ये all right, good. Yes, sir. तो ये 5 प्लेन्स हैं, ठीक है. इस पे हम बात करेंगे. सबसे जो लोएस्ट लेवल का प्लेन होता है, जो सबसे डेप्थ होती है, वो होती है सरफेस स्ट्रेटेजी की, ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना स्कोप, फिर स्ट्रक्चर, फिर स्केलेटन और फिर सरफेस आता है. जो दिखता है वो सरफेस लेवल होता है, लेकिन ये डेप्थ इसकी, राइट. अच्छा, अब स्ट्रेटेजी प्लेन क्या होता है? दिस इज वेयर यू हैव टू डिफाइन योर प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स. तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करनी पड़ती हैं, अपना विजन सेट करना पड़ता है. और ये वो वक्त होता है जब आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपके बिजनेस गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड. Also, there's one more thing, setting up the success matrix criteria as well as early as possible. कि यार मेरा success matrix क्या हो, जैसे KPR कहते हैं, और सारी कहानियां ये यहीं पे सेट करनी होती है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी एक और मैं आपको बताऊंगा स्टोरी है. ये मेरे अरशद भाई हैं. In my early days, you know, once we are done with our Urdu apps, आपको पता होगा कि उर्दू की हम पहले मैं ऐप बनाता था कुर्तुबा अपनी LLC कंपनी के थ्रू. तो ये मेरे अरशद साहब हैं, इनकी तरफ से मुझे कॉल आई. कॉल ये आई थी कि भाई यार तुम्हारे गेम तो बड़े अच्छे हैं उर्दू के, दिस एंड दैट, लेकिन मैं इसको लिखना चाहता हूँ, उर्दू लैंग्वेज उर्दू लिखना चाहता हूँ आईफोन पे. तो आई डिड नॉट जंप इमीडिएटली ऑन द ओमनीग्राफ. अगर आपको याद हो, एक जमाना था ओमनीग्राफल लोग यूज करते थे अपना वायर फ्रेमिंग के लिए, ठीक है, और डिजाइन के लिए. और इसके बाद फोटोशॉप में जाते थे. यू नो, दिस वाज द प्रोसेस अर्लियर. मैं बात बता रहा हूँ 2009 की. तो क्या हुआ, मैंने फिर इनसे क्वेश्चन शुरू कर दिए. इनसे पूछा मैंने कि यार ये व्हाई ही वांट टू डू इट, क्यों लिखना चाह रहे हो उर्दू, ठीक है, अरबिक कीबोर्ड क्यों यूज नहीं कर लेते, आईफोन पे ऑलरेडी है, और आप अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट्स योर आउटकम, और आप कम्युनिकेट क्या करोगे उर्दू में, किससे करोगे, आपका रीजन क्या है. तो आई स्टार्ट आस्किंग हिम क्वेश्चंस कि आपका प्रोसेस क्या है, व्हाट यू डूइंग टुडे, व्हाट यू हैव डन यस्टरडे रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम. तो ये क्वेश्चन करना जरूरी होता है. इसके बाद जाके आपको बात समझ में आती है. और इसके लिए क्या होता है, दिस इज द स्टेज इन योर प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस वेयर यू नीड टू आइडेंटिफाइंग द टारगेट यूजर. इन्वॉल्व योर स्टेक होल्डर्स इमीडिएटली. स्टेक होल्डर के पास आखिर में नहीं जाना होता, शुरू से इनको इन्वॉल्व रखना होता है. आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स एंड कंसर्न. और इन शॉर्ट, दिस इज वेयर यू हैव टू बिगिन योर यूजर रिसर्च. Beside doing user research, employ the market research. At least you will start getting more data points. Market research इसलिए मैं include करता हूँ यहाँ पे कि भाई आपको और data points चाहिए होंगे. data points से क्या फायदा होता है, data points से और ये आपकी concreteness आती है आपकी problem insights, problem statement में. अच्छा, स्टोरीज कैसे कलेक्ट करते हैं, मुझे समझ, क्योंकि लोगों की कंप्लेन होती है यार मैं बड़ी कंपनी में हूँ, छोटी कंपनी में हूँ, मेरे पास यूजर रिसर्च का डिपार्टमेंट नहीं है. तो दिस इज माय टेक्निक, यू नो, ट्राई टू फ्रेंड विद सेल्स टीम. दे आर द बेस्ट पीपल यू कैन गेट इन टच विद, क्योंकि कस्टमर से ज्यादा कनेक्ट होते हैं, बहुत करीब होते हैं. दे विल टेल यू सम अमेजिंग स्टोरीज और अमेजिंग इनकाउंटर्स, और सम ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपको बताएंगे जिससे ये आपको आइडिया होगा कि यार ये तो कभी किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू द यूजर, राइट. बी फ्रेंड विद द टियर 1 एंड टियर 2 सपोर्ट टीम एज वेल. ये सपोर्ट की जो कॉल आती है उनसे भी आप फ्रेंडशिप करें, क्योंकि वो आपको बताएंगे यार कौन कौन से ऐसे नॉर्ली प्रॉब्लम्स आए हुए हैं और जो कस्टमर को फेस कर रहे हैं. अब क्या होता है, लेट्स मैप इट. अब हम मैप करेंगे. It is the best time to craft the user journey map and this will help you to get the right persona. अब यहाँ पे आपने पूरा देख लिया कि यार क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, are we targeting the right user or not. आपको persona समझ में आना शुरू हो गया कि यार किस टाइप के यूजर हमारे
होने चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि आप एप्लीकेशन सबके लिए नहीं बनाते. यूजर जर्नी मैप इज क्या होता है? यूजर जर्नी मैप सिंपल, इट्स अ विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस that a person goes through in order to accomplish a goal. ये नील्सन नॉर्मन ग्रुप है, इसकी वेबसाइट पे जरा ध्यान रखें. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, गुरु लोग हैं, इनके पास कंटेंट जो होता है एवरीबॉडी रिफर देयर कंटेंट. Also, if you want to observe and note down your observation into a holistic way, then consider creating the experience map. फिर एक और मैप होता है, वो आपको कंसीडर करना पड़ता है कि एक्सपीरियंस मैप कैसे करें. इट्स अ पेरेंट ऑफ जर्नी मैप. Simplest difference I can tell you is this: journey map is for single user and it's very specific. जबकि experience map is agnostic of the specific business or product. It is used to understand the human behavior. अगर human behavior को समझना है तो experience map आप define करते हैं. अगर आप एक specific user को समझना है तो journey map. ये ध्यान रखें, ठीक है? Think of the difference in term of ride sharing app. Before the ride sharing app, जिस तरह ये Uber और आपके यहाँ करीम है, राइट, ये दोनों एप्स हैं. तो लोग कैसे ट्रांसफर करते थे, ट्रांसपोर्ट अपने ट्रेवल करते थे? हाउ ह्यूमंस वर ट्रांसपोर्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन अ सिटी, कैसे करते थे, ये आपको देखें. एंड वंस वी नो द पेन पॉइंट, अब उस एंगल से मैंने देख लिया यार ये पेन पॉइंट्स हैं, एंड वी कैन देन क्रिएट अ फ्यूचर जर्नी मैप ऑफ अ प्रोडक्ट दैट वी वांट टू बिल्ड. लेट्स से करीम और उबर और समथिंग लाइक दैट, जो भी आपको बनाना है. पहले ये देखिए कॉमन प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ह्यूमन को, उससे आपको आइडिया हो जाएगा अच्छा ये वाली ऐप एग्जिस्ट करती है, नहीं करती तो आपके सामने एक और नई प्रोडक्ट भी आ सकती है, ठीक है. दिस वे यू कैन एक्चुअली डू द इनोवेशन एज वेल. अच्छा, अब क्या हो गया, वंस यू हैव द डेटा अबाउट योर यूजर, इनका ऑब्जेक्टिव आ गया, प्रॉब्लम सारी सामने आ गई. अब क्या हो, इट्स टाइम टू हैव सम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वेयर यू कैन आइडिएट मल्टीपल सॉल्यूशन. अब आपको पता लग गया यार ये प्रॉब्लम है और ये यूजर आपका चाह रहा है, जबरदस्त. अब क्या करें भाई, अब बड़ा सिंपल सा काम, आइडिएट करें. आइडिएट क्या होता है? स्पेसिफिकली द नेगेटिव केस. वो अच्छा, आइडिएट करना ही होता है मैं किस तरीके से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, लेकिन नेगेटिव केस भी देखो. दे आर वाइटल एंड दीज नेगेटिव सिनेरियो विल हेल्प यू टू थिंक बियॉन्ड द हैप्पी पाथ. यूजुअली क्या होता है, एक हैप्पी पाथ हम क्रिएट करते हैं कि यूजर यहाँ पे आएगा, क्लिक करेगा, साइन इन करेगा और लॉग इन होगा, फिर ये पोस्ट करेगा. यू नो, नॉर्मल टिपिकल जो पाथ होता है उसको हैप्पी पाथ कहते हैं. लेकिन अगर यूजर ये ना करे, यूजर कोई कोई शरारत करने बैठ जाए, कोई डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करे, इसको आपकी वेबसाइट समझ में नहीं है, अगर वो ऑपरेट करेगा इसको तो कैसे करेगा? व्हाट इफ दिस थिंग गोज रॉन्ग, ये भी आपको सोचना होता. अगर क्या हो गया, खराबी हो गई तो सही है. लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट व्हिच आई टुक एज अ यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, राइट. सो बैक इन 2010 एक मेरे जहन में आइडिया है टीम के साथ. Kurtuba LLC, now a defunct startup that once brought all the Urdu apps and become the pioneer of Urdu language on iOS devices. हमने क्या किया था, हमारी वजह से ये उर्दू लैंग्वेज अगर आप देख रहे हैं आईफोन पे, इट इज बिकॉज ऑफ Kurtuba LLC. सही है. तो इट वाज नॉट अ न्यू आइडिया, जो हम ये नया आइडिया नहीं था, क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, जब आप वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं तो आपको हलाल प्रोडक्ट लेनी होती है आपको, ठीक है. तो हलाल चीजें खाने के लिए आपको यहाँ पे एप्स बनी हुई है. अब ये कोई नया आइडिया नहीं था हमारे पास, पहले से कंपनी थी zabiha.com के नाम से, सही है, वेरी पॉपुलर. अब बिल्कुल ही थक्कड़ हो गई, अब तो वो अपने मेंटेन भी नहीं करते, क्योंकि गूगल मैप ने सारा डेटा अपने पास ले लिया है और वहीं पे अब आ जाता है कि यार हलाल है, रेस्टोरेंट का नहीं है. सो हमने अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे किया Zabiha से उस वक्त. सो बिफोर राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड and solidifying that, oh yeah, we need to build something better, हमने ये नहीं किया कि मैं इससे बेहतर बनाऊंगा. हमने क्या किया, we start digging into the user reviews in App Store and start googling up the reviews. हमने फिर गूगल अप किया, रिव्यूज और जगह से चेक किया कि Zabiha.com की क्या थे सिनारियोज और रिव्यूज क्या हैं. तो एक हमने नेगेटिव, 2-3 नेगेटिव केस हमें नजर आए, वो नेगेटिव सिनारियोज हमने वहां से निकाले. एंड यूजर कंप्लेन्स अबाउट इट. And it actually happened with me when I was with my wife and with my 2-year-old baby. You know, मैं आपको बता रहा हूँ 2009-10 की बात बता रहा हूँ. हम जा रहे थे, यहाँ पे एक एरिया है हाफ मून बे का और बड़ी पहाड़ियां हैं, तो वहां पे सिग्नल नहीं आते. तो मेरी बीवी ने पूछा, भाई ये बताएं कि यहाँ पे हमने कि भाई खाना खाना है, सही है, where should we eat? I asked her कि यार let's eat, find out Zabiha, Zabiha हलाल यहाँ पे कोई होगा रेस्टोरेंट, ढूंढ लेते हैं. तो गेस व्हाट,
तो जैसे बताया यूएस मोबाइल नेटवर्क कवरेज इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क की होती है, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन ओपन की, चेक किया तो पता लगा ज़बिया ऐप करिए नो इंटरनेट कनेक्शन। सो हमारा ये आहा मूवमेंट था, यहाँ पे हमने देखा ओ अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो बंदा कैसे ढूंढे, राइट, इस तरह के इलाकों में। तो दिस सिनेरियो, दिस नेगेटिव सिनेरियो हेल्प मी, यू नो, और फिर हम वी एंडेड अप एक्सप्लोरिंग इन मोर डेप्थ कि व्हाट कुड गो रॉन्ग इन व्हाट सिनेरियो। ये हमें समझ में आना शुरू हो गया कि यार अच्छा ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ यूजर इधर उधर होगा और यू नो ये कहानियां हो सकती हैं। सो फिर एक सीन हो गया हमारे साथ, हमने ये सब बीटा टेस्टिंग कर रहे थे तो हमने बीटा एप्लीकेशन डाली, तो ज़बिया हमसे डर गए। अच्छा, ज़बिया ऐसी कंपनी, आपने पता नहीं हाउ हाउ ओल्ड आर यू गाइस, एक सोशल नेटवर्क था, हम यूज करते थे पाकिस्तान में ऑर्कुट, ठीक है। इसके बाद नसीब.com के नाम से एक आया था, इसके बाद फेसबुक पॉपुलर हुआ है, ठीक है। तो ज़बिया वाले एक्चुअली नसीब.com भी चला रहे थे। अब वो दे आर बिग कंपनी, राइट। अब उनसे हमें वो हो गया, क्या कहते हैं, उनको हमसे खतरा लाहक हो गया, ये देखे उनका ईमान खतरे में आ गया। सो क्या हुआ भाई कि इट वाज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ द फियास्को, यू नो। वो क्या हुआ, इन लोगों ने हमारे साथ ये कन्वर्सेशन शुरू किया, आप खुद पढ़ें कि हम आपकी यू नो नॉन मैप को हम बंद करवा देंगे, तो दिस करवा देंगे, टिपिकल, यू नो। अच्छा, वो माशाल्लाह से हमारे वो भी पाकिस्तानी भाई हैं, तो हमें धमकियों पे धमकियां मिलना शुरू हो गई क्योंकि कंपटीशन ऐसा आ गया कि वी वर ट्राइंग टू टिपिकल यूजर प्रॉब्लम, यू नो, यूजर्स प्रॉब्लम। अब ईमेल आपके सामने है भाई, आप ये सारे टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ लें हमारे क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया कि तुम लोग ये हो, तुम लोग दिस हो, तुम लोग दैट हो, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो हमने अपना लॉयर हायर किया, हमने कहा भाई और ये सीन चेक करो। तो लॉयर ने कहा भाई कि डोंट वरी, यू नो, योर केस इज कूल। हमने फिर उनको लेटर भेजा, हमने कहा भाई आप जिस चीज के ऊपर शोर मचा रहे हैं, पब्लिक एड्रेसेस के ऊपर, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस एड्रेस होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाए। सो ऐसा क्यों हुआ, सोचने की बात है। इसलिए ऐसा हुआ कि हमने प्रोडक्ट इनकी ही अपनी प्रोडक्ट की, जो ये ज़बिया थी, सही है, ज़बिया.com, 2-3 ऐसे नेगेटिव केस निकाले जिससे यूजर्स मुतमईन नहीं थे। हमने वो सामने रख दी लाके अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि हमारी नॉन मैप में हमने क्या सीन किया था कि यू विल ऑलवेज हैव ऑफलाइन डेटा, ठीक है, और डेटा रिव्यूज का डेटा अपडेट होता था, बाकी जो बिजनेस एड्रेस का डेटा था वो हमेशा है ना, वो होता था, क्या कहते हैं आप, ऑफलाइन अवेलेबल होता था। तो ऐसे सिचुएशन में जहां आपके पास सिर्फ जीपीएस चल रहा है और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके फोन पे, ठीक है, तो आपके पास डेटा आ जाता था, एंड यू आर लाइक सुपर कूल एंड डैंडी, राइट। अब ये है कि वैलिडेशन, ये वैलिडेशन होती क्या है, इस स्टेज पे आपको वैलिडेशन करना, तो यूजर टेस्टिंग करनी होती है, आपको जाके अपने मार्केट में टेस्ट करना होता है प्रोडक्ट। नो, आई डोंट मीन, व्हाट डू आई मीन, यू नो, वेरी सिंपल, कि आप वायर फ्रेम, यहाँ पे वायर फ्रेम बनाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि वायर फ्रेम बहुत एलोबरेट करें, सही है, बड़ा सिंपल है, पेपर स्केच भी कर लें एंड सी, और देखिए यार लोग रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। असल में इनका रिएक्शन आपको नहीं देखना है कि यार पहला आपने आइडिएट किया, इसके बाद यहाँ पे आपने कहा यार चलो मैं देखता हूँ पहला आइडिया ठीक है नहीं, तो ऑलवेज कीप टेस्टिंग, ऑलराइट, AKT, ऑलवेज कीप टेस्टिंग, ऑलवेज कीप टेस्टिंग। रीजन, आप डिजाइन कर लें, टेस्ट करें, डिजाइन करें, टेस्ट करें, क्यों, क्योंकि हम क्या होता है, हम रिलाई करते हैं बहुत टिपिकल चीज पे, वो होती है क्या कि ओ मैंने बना लिया, मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होगी, अब यूजर खुद आएंगे देख लेंगे, नहीं। आप जब टेस्ट का आपने सीन हर स्टेप पे रखा होगा ना, तो आपकी प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त, ऐसे क्या कराची की लैंग्वेज में लशफश कहते हैं, राइट, ऐसा हो जाएगा। इन शॉर्ट यू हैव टू सी के हाउ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये, हाउ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मैचेस विद द यूजर नीड, find that connection and relation. Also, do not forget about the competitive analysis, because this will give you a good insight about your competition. Be thorough, be as detail oriented as you can. Last but not least, define the matrix which will help you in short and long run to measure your success. It will be like making sure if the car is properly oiled. सही है, water in the carburetor is not leaking. ये पूरा टेस्ट करना पड़ता है। And took our target persona from point A to point B. पूरे अगर आप कार डिजाइन करें तो आपको हर चीज देखनी होगी, तो ऑब्वियसली आपको है ना ये मेजर करना होता है सक्सेस।
So what is KPI? KPI stands for Key Performance Index. It translates the success factor of your project, department or company into numbers. भाई numbers में सब चीजें चल रही होती है ना, right? कि मेरे पहले 10% कन्वर्जन रेट था, अब मैंने नया डिजाइन लेकर आया, अब मेरा 50% हो गया, राइट? तो दिस इज हाउ यू मेक श्योर के आप इसका KPI अपना चेक करते हैं, और उसके लिए आपने पूरा डिफाइन करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पे कैप्टन अमेरिका का KPI कैसे होगा, राइट? सो उसने कितने नाजी बेस डिस्ट्रॉय किए, अराइवल टाइम कितना था प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे, रीचिंग आउट टू द राइट टीम मेंबर इन द टाइम ऑफ नीड. अच्छा, फिर OKRs क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द OKRs, राइट, आपको ये देखना होता है. UX KPIs, OKRs, ROI, सारी चीजें. OKR क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट. अब रिजल्ट क्या, की रिजल्ट क्या चाहते हैं? मोस्ट ऑफ द OKRs एंड देयर मेजरेबल फॉल इनटू द फॉलोइंग: माइलस्टोन एंड डिलीवरेबल्स. ये भी चेक करना होता है यार, ये डिलीवर टाइम पे हुआ नहीं हुआ. फेज ऑफ वर्क, मैट्रिक्स फॉर एंगेजमेंट, एक्टिवेशन, रिसर्च एंड यूसेज. फिर ROI क्या होता है? ROI की टर्म है वो कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मेरे पर डॉलर कितना यूजर का पर यूजर कितने डॉलर मुझे खर्च करने पड़े तो वो आया है, यानी मार्केटिंग में. तो इसमें तो ये सारा आपको है ना, ये सारी चीजें फैक्टर की, ये सारी चीजें लेकर आनी पड़ती. ठीक है, अच्छा, ये कंक्लूड करता है. अभी ये स्ट्रेटेजी प्लान पे है, अभी तक हम इट्स नॉट, अभी हम आगे भी नहीं बढ़े हैं. ये सिर्फ स्ट्रेटेजी प्लान पे आपने सारा डिफाइन किया हुआ है. वो ये टेक केयर कौन करता है? लेट्स टॉक अबाउट द पीपल यूजुअली who usually take care of that side of the design business. Mostly design managers, product managers, और इसमें UX strategies भी शामिल होता है, business analyst. और मेरे ख्याल में ये टाइटल थोड़े से irrelevant हो जाते हैं, क्योंकि असल बात तो आपको यही होती है कि आपको प्रोडक्ट बना के लेके कैसे आनी है मार्केट में और क्या रिजल्ट चाहिए एट दी एंड. तो ये पहले से डिफाइन करना पड़ता है. तो ये अभी हम स्ट्रेटेजी प्लेन पे. अब हम नेक्स्ट प्लेन की बात करेंगे, वो है स्कोप प्लेन. अब यहाँ पे है ना थोड़ा डेवलपमेंट, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा काम शुरू होगा. कुछ लोगों को मजा नहीं आता प्रोडक्ट मैनेजमेंट, राइट? तो वो बोरिंग लगता है, क्योंकि वो नॉर्मली एक्सेल शीट और वर्ड डॉक खोल के ही बैठे होते हैं नॉर्मली. अच्छा, स्कोप प्लेन क्या है? सो नाउ यू नो द फॉलोइंग. अब आपको पता लग गया कि फॉर whom you are building it, what will be the business objective you want to achieve, how you are going to measure your success, and which solution you have to follow that you have identified through the ideation. तो आपको ये सारा पता लग गया स्ट्रेटजी प्लेन, राइट? You have enough data. क्वालिटेटिव डेटा भी है आपके पास, क्वांटिटेटिव डेटा भी है. क्वालिटेटिव डेटा कैसे आता है भाई? बड़ा सिंपल है. आप इंटरव्यू करते हैं तो किसी का मूड पता लगता है, यार ये प्रोडक्ट बकवास है, बेकार है, व्हाटएवर. और क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है आपने सर्वे भेजा, आपको पता लगा है 67% लोग इससे मुतमईन नहीं है. दिस इज द क्वांटिटेटिव, जिसमें मेजरिंग आ जाए, नंबर आ जाए. अभी आपका बेस बन गया कि आपको पता लग गया क्या करना क्या नहीं करना. अब ये वाला प्लेन क्या करता है? दिस प्लेन इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग द फंक्शनल एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, कि काम कैसे करेगी और मुझे कंटेंट क्या चाहिए. फंक्शन फीचर मींस हाउ प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क. कंटेंट से क्या मुराद है? मतलब ये कि हम यूजर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे. मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ क्या आएगा, आइकन कैसे होंगे, इमेजेस कैसे होंगे. तो ये हम इसमें इन सारे इसमें नहीं, पहले ये लेकर आते हैं. इसको समझना आप ऐसे, जब आप रेसिपी अगर आप बनाना, कोई किसी ने बोला यार ये बनाना है खाना, और आप रेसिपी को फॉलो करते हैं, तो पहले आप सारे कंटेंट जमा करके रखते हैं, इसके बाद खाना पकाने जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि चूल्हे पे आपने अपनी हांडी चढ़ाई हुई है और फिर जाके आप सब्जियां काट रहे हैं. आप पहले हर चीज काट कूट के रख के मेक श्योर करते हैं यार अब यहाँ पे जाना है. वो क्यों? क्योंकि रेसिपी जो आपको थी वो समझ लिया आपने स्ट्रेटेजी बना ली, स्ट्रेटेजी प्लेन पे, मुझे ये बनाना है और मुझे ये चाहिए होगा. ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू बी स्ट्रिक्ट. समटाइम क्या होता है, हमने कोई आइकन उठाए थे, इट डज नॉट मैच, राइट? कोई कंटेंट लिखा था, इट डज नॉट मैच, व्हाटएवर. फ्लेक्सिबिलिटी रखें, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही यानी जीरो हो जाए वहां पे. ठीक है, अच्छा, यू हैव फॉर श्योर जनरेट मल्टीपल सिनारियोज. आपने सिनारियोज भी जनरेट किए होंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी होंगे आपके पास ड्यूरिंग योर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन. याद है स्ट्रेटेजी प्लेन पे क्या था? एंड एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू क्रिएट अ प्रोडक्ट रोड मैप. अब रोड मैप बनाए. अभी भी हमने डिजाइन में नहीं घुसना, अभी रोड मैप बनाना है. रोड मैप में क्या होगा कि यार वर्जन 1 में क्या होगा, वर्जन 2 में क्या होगा, राइट? और एक और काम करें. टिपिकली मेरा तो ये काम होता है, मैं स्ट्रेटेजी से ही मैं डेवलपर्स को अपने साथ लेके चलता हूँ. अगर नहीं इस तरह मुमकिन होता, तो जब हम रोड मैप बना रहे होते हैं, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, वेल्स फार्गो की, तब हमारे पास डेवलपर्स, वी गेट अवर डेवलपर्स इन्वॉल्व
because once you start defining the functional and content requirement, you will need a sanity check. अब क्या होता है sanity check का मतलब भाई बड़ा सिंपल है कि यार ये इंटरेक्शन में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, राइट? टेल मी वन थिंग कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, समझ में आया? मतलब ये है कि डेवलपर्स आपको ये बताता है कि भाई ये चीज इंप्लीमेंट तो हो जाएगी बट इसको 4 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे या 6 साल लगेंगे, राइट? तो ये डेवलपर्स को रखने का फायदा ये होता है मेरे भाई। अच्छा, और जब भी आप डिफाइन करें, डिफाइन द कनेक्शन बिटवीन फीचर्स। फॉर एग्जांपल कि अगर आप प्रोडक्ट रोड मैप बना रहे हैं तो मेक श्योर करें आपने जो स्ट्रेटेजी पे सारी चीजें डिफाइन की थी वो आपस में कनेक्टेड हो। एंड डज दिस, एंड आल्सो मेक श्योर कि यार डज दिस दोस फीचर्स आर गोइंग टू टेक यूजर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमेशा अपने गोल को सामने रखें कि यार मैं ये फीचर बता रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, इज इट गोइंग टू हेल्प देम टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो आपने एनविजन किया था। अगर कोई गैप है तो प्लीज फिल करें, दोबारा स्ट्रेटेजी प्लेन पे जाएं। इट्स नॉट लाइक कि एक अगर आपका स्ट्रेटेजी प्लेन अगर वीक है ना तो थिंक ऑफ इट दैट वे, आपकी पूरी बिल्डिंग की फाउंडेशन पूरी बिल्डिंग आपकी वीक होगी। अच्छा, कंटेंट, नाउ लेट्स डिफाइन द कंटेंट। ठीक है, इधर हैव अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, एक और टर्म होती है कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, इनको यूएक्स राइटर भी कहते हैं, वो ले लें। या दे हेल्प यू आइडेंटिफाई द कंटेंट एंड हेल्प यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ कॉमन लैंग्वेज अक्रॉस योर प्रोडक्ट। और दूसरा एक ये कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट वो लोग होते हैं कि दे थिंक बियॉन्ड वर्ड्स। कैसे? वो ये थिंक करते हैं कि भाई ये जो आइकन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये अप्रोप्रिएट होगा इस जगह पे या नहीं होगा। ये आपकी इसमें भी हेल्प करती है। दे टॉक विद द विजुअल डिजाइनर एज वेल। सही है। कंटेंट रिक्वायरमेंट इज अ मस्ट, आई बिलीव on this stage. It tells you which type of information you need और फिर किस तरीके से आपकी होगी। विदाउट कंटेंट स्पेसिफिकेशन क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप अपने यूजर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। यूजर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको प्रॉपर तरीके से यूजर लिखना होगा। भाई अगर एक एरर आए, ठीक है, और वहां पे लिखा है एरर नंबर 51, ये तो आपने वो किया था ना अपना क्या कहते हैं एक टिपिकल डेवलपर ने डाल दिया, उसने देयर इज एन एरर विद योर फॉर्म, एरर नंबर इज 51। अब एरर नंबर 51 क्या है भाई? नोबडी नोज। तो इसीलिए कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट क्या होता है, इस पॉइंट पे आपको पूरी हेल्प करते हैं। यार ये वाला कॉन्टेक्स्ट था, ये कंटेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट? चलो इसको इस तरह समझते हैं। बुक शेल्फ है ना, बुक शेल्फ वो फीचर है। घर में बुक शेल्फ आपने देखी होंगी, लाइब्रेरी में, घरों में जो बुक्स होती है ना, बुक्स, वो इसका कंटेंट है। मेक सेंस? सिंपल कि दिस इज अ प्लेन वेयर यू नीड टू एग्जॉस्ट द कंटेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आपको जबरदस्त तरीके से बैठना होता है कि क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए, किस तरीके से चाहिए, और मेक श्योर करना होता है ये अलाइन हो विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब अच्छा, अब डिफरेंस बिटवीन हम फंक्शनल कंटेंट रिक्वायरमेंट, दोनों में हम रिक्वायरमेंट डिफरेंस भी देखते हैं। द फीचर फंक्शन इज स्टोरिंग अ बुक्स इन अ वे सो आई कैन इजीली ब्राउज देम व्हाइल द कंटेंट इज द बुक एंड द प्रोडक्ट इज बुक शेल्फ। समझ में आया? इस तरह समझ लो फंक्शन इस तरह से। दोबारा, फीचर फंक्शन क्या है बुक शेल्फ का? कि मैं स्टोरिंग अ बुक इन अ वे सो आई कैन इजीली ब्राउज देम, इस तरीके से रखूं कि मैं इजीली इसको एक्सेस कर सकूं, while the content is books, right? और प्रोडक्ट क्या हो गई? बुक शेल्फ हो गई। होप इट क्लेरिफाइज दैट थिंग। ये क्या था भाई? दिस इज द प्लेन वेयर यू नीड टू एग्जॉस्ट द कंटेंट एंड फंक्शनली रिक्वायरमेंट टू मेक श्योर इट मीट द यूजर नीड्स एंड अलाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। वेरी सिंपल। अच्छा, ये आपने देखा है जब व्हेन समवन कम टू अस स्टार्टअप आइडिया के साथ, या कोई ओ यार ये जबरदस्त आइडिया, चाय पे ढाबे पे चाय पीते पीते कोई आइडिया आया, और हम क्या होते हैं, वी जस्ट गेट एक्साइटेड, राइट? और क्या करते हैं, अरे यार जरा स्क्रीन चेक कर, ड्रिबल पे गए, बिहांस पे गए, और जबरदस्त किस्म की लशपश स्क्रीन हमने डालना शुरू कर दी, राइट? और फिर क्या होता है, एंड देन व्हेन वी डन विद आवर डिजाइन, हम अपने दोस्तों यारों से कहते हैं यार ये चेक करना मेरी ऐप मैंने डिजाइन बनाया है, और पता लगता है भाईजान कोई यूजर जिस प्रोडक्ट के लिए आपने बनाया था कोई आया नहीं उस पर। ये डिलेमा है
अपकमिंग यूएक्स डिजाइनर्स के साथ। सही है, ये डिलेमा है भाईजान, इसको हमने अवॉइड करना है। अब ये देखें, जो ये डायग्राम है वो क्या बता रहा है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्या होता है, फ्रंट पेज पे क्या होता है, ये होता है कैंपस की फोटो होती है, स्लाइड से। अब लोगों के असल में चाहिए क्या होता है, लिस्ट ऑफ फैकल्टी फोन नंबर, कैंपस का एड्रेस चाहिए होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये। लेकिन कहानियां क्या रखी हुई है, जो चाहिए नहीं वो रखा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं। इसीलिए टेस्ट हर प्रोसेस हर स्टेप पे करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर प्लेन की। ये वो प्लेन होता है जहाँ इंटरेक्शन डिजाइनर बड़े शाइन करते हैं। So you have to define how the user will interact with the product, and involving the information architecture here will help you to organize the flow of interaction. So बहुत सारे इसमें जॉब टाइटल आप देख रहे हैं, आ भी रहे हैं, इससे कि यूएक्स की फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें एक बंदा नहीं होता, इसमें बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व होते हैं। सो इंटरेक्शन डिजाइनर एट दिस स्टेज ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखता है, और फिर ये देखता है कि इंटरेक्टिविटी, वो फिर क्रिएट करता है उसकी इंटरेक्टिविटी, सारी कहानियां कि यार ये बटन क्लिक होगा तो कैसे होगा, गेटिंग द क्यूज फ्रॉम द, और यूजर रिसर्चर से जो डेटा उन्होंने इकट्ठा किया उसको भी लेकर आता है अपने सामने, और उसको हिसाब से वो पूरी चीजें डिजाइन करता है। फिर एक और बंदा होता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, राइट। सो ये क्या करते हैं, ये डाइव डीपर करते हैं कंटेंट स्पेक्स में, जनरेट बाय द कंटेंट स्ट्रेटजी। वो देखते हैं रिलेशनशिप क्या है, हायरार्की क्या बन रही है डेटा के साथ। मिसाल के तौर पे, इफ देयर इज अ मेन्यू राइट अबाउट एन एनिमल, यू कैन एक्सपेक्ट द मेन्यू आइटम्स। क्या मेन्यू, अगर मेरे एनिमल शो करने का मेन्यू आइटम है तो मैं शो क्या करूंगा, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, राइट, इंस्टेड ऑफ सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, राइट। ये तो मैं करूंगा नहीं ना। तो ये सारा मेक श्योर करता है अपने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कि यार जब मेन्यू क्लिक हो या मेन्यू में किस तरीके से हायरार्की हो, तो वो कार्ड सॉर्टिंग की टेक्निक यूज करता है। बहुत सारी और इसके डिफरेंट मेथड्स और टूल्स होते हैं। अच्छा, interaction design details cannot be achieved if you haven't done your research properly. Exactly, understanding users pain point can help you accomplish this, and for that you need a proper journey map at the very beginning, because journey map अगर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा एक यूजर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे अभी जा रहा है, इसकी करंट सिचुएशन क्या है, और इसकी फ्यूचर सिचुएशन क्या होनी चाहिए जिसमें और आसानी हो। चेंजिंग द स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्टिविटी। मिसाल के तौर पे मैंने बटन प्रेस किया, उस पर हवर की स्टेट नहीं आई, तो मैं हमेशा परप्लेक्स होऊंगा, यार बटन प्रेस हुआ या नहीं हुआ, प्रेस की स्टेट नहीं है तो पता नहीं प्रेस हुआ नहीं हुआ, और कोई प्रोग्रेस बार भी नहीं आ रहा जहां मुझे पता हो कि यार प्रोसेस हो रहा है, सडनली रिजल्ट आ गया। सो इसको कहेंगे ब्रोकन इंटरेक्शन, राइट, या ब्रोकन एक्सपीरियंस। अब ये सारी कहानियां कौन कर रहा होता है, इंटरेक्शन डिजाइनर, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, इस स्ट्रक्चर प्लेन पे चला रहे होते हैं अपने। सही है। अच्छा, इंटरेक्शन डिजाइनर क्या है, एट दिस स्टेज लुक इनटू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, they take a deep look into it and then define the interactivity between all kind of elements, and also creating a patterns which follows user mental model. वो अगेन क्यू कहां से लेते हैं भाई, वो लेते हैं यूजर रिसर्च से। क्या होता है भाई, इनका बड़ा सिंपल सा काम होता है। इनका काम ये होता है, यार अगर यूजर यहाँ पे आया है वेबसाइट पे, ये कॉन्टेक्स्ट में ये है, यहाँ पे ये इंटरेक्टिविटी करते तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे गुड इंटरेक्शन डिजाइनर क्या होता है, गुड इंटरेक्शन डिजाइन इज वेरी सिंपल, helps people to accomplish their goals। सही, कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली इंटरएक्टिविटी स्टेट्स के साथ। स्टेट कहते हैं जैसे प्रेस स्टेट, डिसेबल स्टेट, इनेबल स्टेट बटन की होती है मिसाल के तौर पे। तो इस तरह की मुख्तलिफ स्टेट्स को भी यूज करता है। फंक्शनैलिटी के, व्हाट यूजर कैन डू, और इन्फॉर्म करता है यूजर को, यार तुम्हारी स्टेट चेंज हुई है, तुम्हारे स्क्रीन का कुछ सीन ऑन हुआ है या कुछ एरर आया है यहाँ पे, दिस एंड दैट, राइट। और एक और भी काम करता है, वो कोशिश करता है कि यूजर कोई टिपिकल मिस्टेक ना करे, अगर करता भी है तो यूजर से प्रॉपर कंफर्मेशन लेता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह एक्शन होते हैं, हार्मफुल एक्शन, मिसाल के तौर पे डिलीट करना फाइल को, तो डिलीट करने से पूछता है जरूर कि भाई ये वाली फाइल डिलीट कर रहा हूं, सिस्टम कहता है राइट। और अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर डिलीट कर दूंगा तो फिर आप रिकवर नहीं कर सकते, तो आपको प्रॉपरली वार्न करता है, इसके बाद आपको लेट। तो ये सारा कंटेंट, सारे लिखना, ये सारा करना, इंटरेक्शन डिजाइनर्स को सब चीजें पिरोता है एक प्रॉपर तरीके से। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या करता है, दे डाइव डीपर इनटू द कंटेंट स्पेक, जो हमने बात की थी, कंटेंट स्ट्रेटजीज बनाता है, ठीक है। और गुड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कौन होता है, बड़ा सिंपल, वो ऑर्गेनाइज करता है चीजें, कैटेगराइज करता है, प्रायोरिटाइज करता है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन यूजर नीड्स
or business objective. Make it easy to understand and move through information presented. वो make sure करता है भाई अगर आप इस मेन्यू पे आए हैं तो आपके पास इसका जो सब मेन्यू होगा वो प्रॉपर ऐसा मेन्यू होगा जो मेक सेंस करता है और यूजर इजीली फ्लो थ्रू करे, राइट? फ्लेक्सिबल टू अकोमोडेट ग्रोथ एंड अडेप्ट टू चेंज। मतलब ये भाई आपकी वेबसाइट पे आज 10,000 यूजर आए थे, कल 10 मिलियन यूजर आना शुरू हो गए, तो उस वक्त ये किस तरह से इंफॉर्मेशन को हमने प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना है ताकि यूजर आराम से उसमें भी फ्लो कर सके। और ये भी मेक श्योर करता है इस जो कंटेंट वो लिखा है आपने वो अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस हो, इनके मेंटल मॉडल के हिसाब से। मिसाल के तौर पे पीएचडी के स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट तरीके से इंटरनेट यूज करते हैं, जबकि कंप्यूटर गीक डिफरेंट तरीके से यूज करता है, राइट? क्योंकि इनका माइंडसेट ही टोटल डिफरेंट है। अच्छा, इंटरेक्शन डिजाइन कैन नॉट बी अचीव इफ यू हैव नॉट डन योर रिसर्च प्रॉपरली, because understanding your target persona pain point can help you accomplish this, and for that you need a proper journey map जो हमने बात की थी, changing the states according to the interactive, getting feedback of your, but the wireframes here are not set। अच्छा, यहाँ पे फिर wireframes भी बनते हैं, right? They are not set in stone yet। अभी हमने सिर्फ आइडिया निकाला है मार्केट में अपने दोस्तों के दरमियान, टीम के दरमियान। ये क्या प्रेजेंट करते हैं? सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लो, कि यार फ्लो कैसे होगा। अभी जो wireframes यहाँ बन रहे हैं ना इस स्टेज पे भी, वो खाली इंफॉर्मेशन फ्लो को डिफाइन करने के लिए बने, वो इसलिए नहीं बने कि बटन यहीं पे होगा। वो खाली बताते भाई क्योंकि नाउ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और इंटरेक्शन डिजाइनर दोनों इन्वॉल्व हैं इस प्लेन पे, इस स्टेज पे भी आप कह लें। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो कह रहे हैं यार अगर आइडिया लेना है, अगर मैं इस तरीके की स्क्रीन होगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं टिपिकली एक होता है ब्लॉक वायर फ्रेम, तो मैं ब्लॉक वायर फ्रेम के थ्रू जाता हूँ। सो आई डू नॉट focus more into the buttons and style and whatever। मैं खाली ब्लॉक होता है कि भाई ये साइन इन स्क्रीन जैसा लग रहा है, साइन इन से जाएगा बंदा, और मैं आई विल शेयर विद ताहिर सो शी कैन शेयर माई। एक मैं काम कर रहा हूँ इसी तरह का, तो वो इसी के लिए, इसी स्टेज के लिए मैंने बनाया, जिसमें यू डू नॉट नीड टू फिक्सेट ऑन बटन डिजाइन। तो आप खाली वो ब्लॉक यूज करें और आपको आइडिया हो जाएगा कि यार किस तरीके से फ्लो होगा। आई विल शेयर विद यू दैट किट बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्लेन। अब हम आ गए हैं स्केलेटन प्लेन पर, राइट? सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्लेन बिकॉज यहाँ पे आप थोड़ा सा विजुअल में आते हैं, तो आप लेआउट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और फिर स्टैंडर्ड क्रिएट करते हैं कि यार फॉर्म कैसे होगा, कौन सी ग्रिड को हमने फॉलो करना है। और आई होप नोबडी इज मैसेजिंग मी, ओके। अच्छा, फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, इसके अराउंड फंक्शन कैसे होंगे, ये सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है? दिस इज अ स्टेज वेयर यू आर वेयर यू डू द वायर फ्रेमिंग, और जो आपका वायर फ्रेम था ना, जो आप आइडिएशन के दौरान और ये इसके इंटरेक्शन में और इससे पहले वाली इस पे अपना प्लेन पे आप काम कर रहे थे, तो सेम अब यहाँ पे उस वायर फ्रेम को सॉलिडिफाई करना होगा। यार चलो इसको जरा एक्सपेंड करते हैं, जरा मोर डिटेल इसके अंदर लिख रहे थे। To make it simple to understand, इस तरह करेंगे स्केलेटन प्लेन को। स्केलेटन प्लेन के तीन चीजें होती हैं, इंटरफेस डिजाइन, नेविगेशन डिजाइन और इंफॉर्मेशन डिजाइन। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का डेटा होगा ना, अब यहाँ पे डिजाइन किस फॉर्मेट में आएगा। इंटरफेस डिजाइन इज ऑल अबाउट क्या होता है, पुटिंग यूआई एलिमेंट्स इन अ फॉर्म व्हिच मेक्स सेंस। और फिर नेविगेशन डिजाइन क्या होता है भाई, बड़ा सिंपल, कि यूजर कैसे फ्लो करेगा। मींस एक तो आप वायर फ्लो बनाते हो और फिर आप मेन्यू स्ट्रक्चर भी बनाते हो। इंफॉर्मेशन डिजाइन क्या होता है, इज अबाउट प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। जो आपके इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ने स्ट्रक्चर प्लेन पे सारा काम करके दिया था ना, अब इसको मेन्यू के अंदर डालने के, किस तरीके से डालेंगे, कैसे नहीं डालेंगे। इन द एंड व्हाट यू विल गेट द फॉलोइंग, हाउ प्रोडक्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन गोइंग टू लुक लाइक ऑन अ स्क्रीन, हाउ इंटरेक्शन विल बी प्रेजेंटेड एंड अरेंज, फिर हाउ विल यूजर नेविगेट अराउंड माय एप्लीकेशन, सही है, फिर हाउ इंफॉर्मेशन इज कंटेंट एज यू मे, इंफॉर्मेशन कह लें कंटेंट कह लें, will be presented clearly। तो इस प्लेन पे आते हैं ना स्केलेटन पे, तो फिर ये चीजें जरा जड़ पकड़ना शुरू करती हैं। In the end, what you will get the clarity of your product, visual representation on any digital medium, the detailed view of interactivity, the navigation structure, and आपका lingua franca of your product। जिस तरह भाई आपकी प्रोडक्ट अगर उर्दू में है तो उसको उर्दू के जो कल्चर है हमारा पाकिस्तान का, उसके हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए, राइट टू लेफ्ट, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फिर हर चीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। नस्तली का आप टाइप फेस लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा आपको टाइप जो साइज होता है फॉन्ट का वो बढ़ाना होगा,
और आपको मार्जिन जो टॉप और बॉटम होते थोड़े इंक्रीज करने होंगे एज कम्पेयर टू इंग्लिश वाली इसमें, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको जब विजुअल डिजाइनर के साथ बैठेंगे, सो यू हैव टू मेक श्योर ये सारी कहानी बेसिकली स्केलेटन प्लेन ये वाले क्वेश्चंस को आंसर करता है कि व्हाट यू विजुअल फॉर्म्स ऑफ ऑल थिंग्स दैट विल बी प्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन। फिर इंटरेक्शन कैसे जनरेट होगी, वो प्रेजेंट कैसे होगी, ठीक है, कौन सा कलर होगा जो डिसेबिलिटी को डिफाइन करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम आइडिया लेना शुरू करते हैं कि यूजर फिर किस तरह मूव अराउंड करेगा मेरी एप्लीकेशन के अंदर या साइट के अंदर, कंटेंट इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे क्लियरली। यहां पे आपको जरा शक्ल नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। सरफेस प्लेन, अब आ गए हम सरफेस प्लेन पे, राइट। ये सबसे लास्ट प्लेन होता है और सबको यही दिखता है और सब कहते हैं यही सारी चीजें, और यूएक्स का जो लुब्बे लुबाब इसी को मानते हैं। मैं अभी आपको बताऊं, आपको अभी हम पूरी चीजें करके आए, राइट। आपको पता लग गया कि यूआई आखिर में आता है। सबसे पहले इतनी 15,000 चीजें करनी होती हैं आपको ताकि आपकी प्रोडक्ट, इवन आप स्टार्टअप में, इवन आप छोटी सी कंपनी है, मैं और मेरा दोस्त उबैद, हम अपनी स्टार्टअप एक शुरू की हुई है, उसका नाम है akiko.co। तो हमें 13 महीने लगे, सही 13 मंथ्स, तब जाके हम इस बात में मुतमिन हुए कि हाँ अब हमने ना डेवलपमेंट करनी है। तो हमने एक हमारा दोस्त है नईम को पकड़ा, बबल जो नो कोड टूल है उसके थ्रू हम सारा गए थे, राइट। उसने पहले हमें प्रोटोटाइप बना के दिया, हमने 2-3 लोगों से इसको दिखाया, फिर जब हम और पक्के हो गए कि हाँ ये राइट ट्रैक है, फिर हमने एक फिर हमने इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू की, जो December 9 को हमने फिर लॉन्च की, अगस्त से December 9 तक। इससे पहले ये नईम मेरा हमारी हेल्प करता था, उबैद मेरा दोस्त है, पार्टनर है। तो हमने 13 महीने लगे हमें एक आइडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए। ये नहीं था कि भाईजान एक दिन गए स्टारबक्स पे बैठे, कॉफी शॉफी पी, ढाबा ये यहाँ अमेरिकन को का ढाबा ये सही है, हाँ भाई हम ये काम करेंगे, चलो भाई नेक्स्ट डे काम शुरू कर दिया। कुछ चीजों में टाइम लगता है, कुछ चीजें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन स्टिल आपको इन प्रोसेस से गुजरना होता है, राइट। डिपेंड करता है कि हाउ डिटेल या हाउ कॉम्प्लिकेटेड दैट प्रोडक्ट इज और कुड बी। अच्छा, इस प्लेन में क्या होता है, एक और दिस इज अ प्लेन व्हिच डिटरमिन्स हाउ डज द प्रोडक्ट विल लुक लाइक। अब यहाँ पे विजुअल डिजाइनर चैंपियन होते हैं, द परफेक्ट लेआउट बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ योर चॉइस। डिपेंड करता है आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं या खाली वेब ऐप बना रहे हैं या रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं जो कि मल्टीपल डिवाइसेस पे काम करेगी, इट्स योर चॉइस, राइट। अच्छा, दिस इज वेयर यू विल बी वर्किंग मोर इन डेप्थ विद मोशन। अब यहाँ पे मोशन, ट्रांजिशन, विजुअल अपील, कलर, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें यहाँ आना शुरू होती। ब्रांडिंग आपकी आप स्ट्रेटेजी भी लेके आ सकते हैं। नॉर्मली लेकर आते हैं कि यार हम ये वाला कलर चूज करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी अबाउट द ब्रांडिंग ये है कि हम अपने आप को एज अ लीडर ऑफ द लेट्स से बैंकिंग इंडस्ट्री का वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो स्ट्रेटेजी प्लान पे ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क ऑन द ब्रांडिंग स्टफ एज वेल। लेकिन जब ब्रांडिंग का कलर शलर की बात आएगी, वो इस प्लेन पे आपको करना होता है जो सबसे लास्ट, राइट। और यहाँ पे आप टाइपोग्राफी की भी बात करना शुरू करते हैं, यार मैं कौन सा फॉन्ट यूज करूंगा बॉडी के लिए। टिपिकली लोग कहते हैं कि 2 फॉन्ट यूज करें, एक होता है जो हेडिंग्स या हेडर के लिए यूज होगा, एक होगा बॉडी के लिए, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा ना करें वरना कंफ्यूज जाती है आपकी वेबसाइट है ना, वो इसमें कोहेसिवनेस लगेगा नहीं। अब इसको मैं इस तरह भी कहता हूँ, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ सम ऑफ ऑल द वर्क, और सारे जो डिसीजन आपने बनाए थे, जो आपने रिसर्च की थी, जो आपने वायर फ्रेम्स बनाए थे, राइट। तो दिस इज वेयर हम डिफाइन करते हैं लुक एंड फील, सॉलिडिफाई करने के लिए। अब हम यहाँ पे लुक एंड फील डिफाइन कर रहे हैं। यू डिफाइन एंड क्लैरिफाई कि यार एरर विल अपीयर इन रेड, जिस तरह एरर आएगा, अच्छा एरर स्टेट आ गई, ओके ठीक है जबरदस्त, वो लगेगी कैसे, रेड में लगेगी। फोकस स्टेट कैसी होगी, डार्क ब्लू लाइन होगी, डार्क ग्रीन लाइन होगी, जब आप फोकस करेंगे विजुअली। अच्छा, यहाँ पे आप चॉइसेस बनाते हैं, ट्रांजिशन कितनी ट्रांजिशन होगी, कितनी नहीं होगी। आपको ट्रांजिशन कम से कम रखनी है, एनिमेशन मोशन, क्योंकि कॉग्निटिव लोड ना पड़े, बंदे के दिमाग, बंदा बेचारा बोलेगा यार ये क्या है, ठीक है मुझे समझ नहीं आ रही आपकी वेबसाइट या आपकी एप्लीकेशन मुझे तंग कर रही है। देयर कुड बी सो मेनी वेज, राइट। अच्छा, अब इसको क्या करना है, अब पुटिंग देम टू वर्क टुगेदर। ईच लेयर, ये याद रखना भाई, ईच लेयर इज डिपेंडेंट ऑन द अदर लेयर्स बिलो इट। समझ में आया? If you messed up in strategy plane, you will see its consequences during the whole project. When you make a decision or choices in any layer, this decision will affect on your future decision in layers and in any direction. You might end up with the spaghetti design. तो इसलिए भाई
हर चीज एक हर प्लेन है ना दूसरे प्लेन से कनेक्टेड है, तो हर प्लेन में फूंक फूंक के कदम रखना है और चलना है। योर डिसीजन, ये एक बात याद रख लें कि मे चेंज ओवर टाइम, दैट्स फाइन। If you consider decisions to be fixed, you will end up building something that nobody wants. Say, if you are in surface and you need to enhance a functionality, you can go back to structure and make it better. ये iterative process है। आपने हर प्लेन में दोबारा आगे पीछे जाना पड़ता है। Say, and you have permission to go back and forth. Don't be fixed. ये नहीं है सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन चलिए, बैक एंड फोर्थ आते जाते रहे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम मिस्टेक करते हैं, दैट्स फाइन। हमें कुछ बात समझ में नहीं है, जाके फिक्स करें, लेकिन मेक श्योर करें वो जो फिक्स कर रहे हैं आप, वो हर प्लेन पे फिर इसके रिफ्लेक्शन हो। ये नहीं हो कि खाली एक जगह आपने फिक्स कर दिया हो कि ये फिर आगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एक फ्लोर को तो ठीक कर दिया, दूसरा फ्लोर जो ऊपर है वो थोड़ा वीक है, फिर इस तरह नहीं, पूरी बिल्डिंग को फिर आपको फिक्स करना हो, राइट। सो अब इसको समरी करते हैं कि हाउ दीज 5 एलिमेंट्स वर्क टुगेदर। स्टार्ट बाय द स्ट्रेटजी। It is the foundation of any successful UX. Then strategy turns into scope. You just translating strategy into a tangible work stream. अब strategy होती है, समझ लो हवा, आपने ख्याली प्लाव बनाया है, ऑब्वियसली आपको लिखना होता है कि मैं ये भी होगा फ्यूचर में, 10 साल बाद ये भी करेंगे, हम इस तरीके से भी काम करेंगे, ये भी होगा। अब क्या होता है स्कोप, क्या होता है स्कोप? ये होता है कि जो आपने सारा ख्याली प्लाव बनाया ना, अब भाई अब स्टेप्स लिखो, इसको अचीव कैसे करेंगे, इसको हमने जो बातें सोची हैं, हमने डिफाइन कर रहे हैं, इसको अचीव कैसे करेंगे, तो स्कोप पे करते हैं, राइट। अब फिर स्कोप क्या होता है, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। स्ट्रक्चर इज बीइंग डिसिप्लिन अबाउट, यानी कि अब हम स्कोप हमने डिफाइन कर दिया, अब स्ट्रक्चर क्या है, समझ लो डिसिप्लिन ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, डिसिप्लिन ऑफ स्कोप। कि भाई अब मैं ये तो लिख दिया कि मैंने ये चीज बनाऊंगा, ये चीज बनाऊंगा, अब कैसे बनाऊंगा। हम we start defining the ways of interaction, functionality, ये पूरा सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करेगा। अब हमने डिसिप्लिन लेकर आ गए इसके अंदर अपने स्कोप में, तो वो बन गया ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर। फिर स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर गिव्स अस द सेंस ऑफ व्हाट टू डिजाइन विजुअली। अब स्ट्रक्चर में बता देता है यार, अच्छा जिस तरह वो घर बनाने के लिए एक होता है ना ब्लूप्रिंट आता है, जिस पर सारा एक ब्लू पेपर पे सारा डिजाइन हुआ होता है, आर्किटेक्चर में क्या होता है, समझ लो वो स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर आपको बता देता है आइडिया कि व्हाट टू डिजाइन विजुअली। अब वो हमारे जहन में स्केच हम करना शुरू कर देते हैं, अच्छा इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा, ये होगा, ये होगा। स्केलेटन में ये क्या हो गया, ये वाला जो सेकंड लास्ट आया हमारा प्रोसेस, बड़ा सिंपल, वो स्केलेटन प्लेस है, क्योंकि हम यहाँ पे विजुअल बनाते हैं। कैन यू गिव मी अ मिनट, सॉरी प्लीज गाइस, होल्ड ऑन, गेटिंग कॉल फ्रॉम माय वाइफ। All right. Sorry, guys. Okay. अच्छा, अब क्या हो गया लास्ट वाला, सरफेस। वेरी सिंपल। अब जो हमने स्केलेटन बनाया था, इसको अब हम रंग रोगन करेंगे, सारी कहानियां करेंगे इस पे, सही कि कहाँ पे लगनी चाहिए बेल्स, कहाँ पे विसल्स होनी चाहिए, सारी कहानियां बिल्कुल दी एंड आखिर में वो लगाते हैं कि यार कलर प्रेजेंटेशन जो भी हमने डिफाइन की थी, बातें सोची थी उसमें। मेक सेंस यहां तक? हेलो, yes, it does. जबरदस्त। ओके, अब नेट पिकिंग। अब क्या करते हैं भाई, अपने अपने ब्राउजर में हम खोलते हैं पार्क व्हील, ठीक है। मैं अपने पास खोलता हूं, आप अपने पास खोलें, पार्क व्हील जरा खोल के चेक करते हैं। ये अगर मेरी ब्राउजर नजर आ रहा है तो भाई मुझे बता देना। सर लिंक शेयर कर दे सर। लिंक पार्क व्हील, यार आप सब पाकिस्तान में याद नहीं है? एक मिनट मैं कर देता हूँ यार, ये लो भाई। चार्ट इज नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, चैट इज नॉट अवेलेबल फॉर मी भाई, तो मैं ताहिर को भेज देता हूँ यहाँ पे। ये लो भाई। So you can. ओके, जबरदस्त, देयर यू गो, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे भाईजान मुझे ये बताएं, एक काम करते हैं, ठीक है।
2-3 सवाल पूछूंगा, 3 सेकंड में ये बताएं, डज दिस पेज टेल द स्टोरी इन लेस देन 3 सेकंड? ये करती क्या है वेबसाइट? यस सर। जबरदस्त। अब यहाँ पे प्रोमिनेंट क्या है, सबसे प्राइमरी एक्शन कौन सा नजर आ रहा है? कौन सा बटन मोर प्रोमिनेंट Search bar. है? पोस्ट योर एड। है जी, एक बंदा बताए बारी बारी। Find Post used ad. cards. एक बंदा भाई, सॉरी, 1 by 1। Sir, search bar. सर्च बार, जबरदस्त। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आपको? No, sir. अच्छा, ये मुझे बताएं, इनका थीम कलर क्या लग रहा है आपको? Blue. Blue and white. जबरदस्त। और कौन है, और कौन बताएगा इनका थीम कलर क्या है? Black and blue, share it. ग्रेडियंट ब्लू एंड ब्लैक प्लस वाइट। इनका थीम कलर है भाई रेड। Yes. Red accent, sir. लोगो देखो, हाँ, वो देखो, इनका लोगो देखो, सही है। तो ये अब है ना, आप जब थीम कलर यूज करते हैं भाई, थीम कलर को बड़े प्रॉपर तरीके से पिक करना होता है। ऐसा कलर ना हो जो रेड एरर स्टेट के से मिल रहा हो। अब एरर कैसे दिखाएंगे आप? यू डोंट नो, क्योंकि वो थीम कलर के साथ मैच कर रहा है। और 2 ऐसे बटन हैं, पोस्ट एंड ऐड और पोस्ट योर ऐड। देख रहे हैं आप हेडर पे और फुटर बीच में जो आ रहा है, ठीक है? वो भी कंफ्यूज कर रहा है बंदे को, यार ये दोनों जगह, एक तो मैं ऐड पोस्ट करूं या अपनी ऐड पोस्ट करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, रिजल्ट को हम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई कराची में, ठीक है, यहां पे मेरी है होंडा अकॉर्ड सर्च करते हैं, ठीक है भाई, लेट्स सी। अब ये बताएं, डिड यू गेट द रिजल्ट? जो आपको रिजल्ट चाहिए था आपको मिला भाई? होंडा मिल गया, राइट? लेट्स ट्राई टू सर्च इट इन योर नेबरहुड। अब ये जो नोटिफिकेशन आ रही हैं, क्या मैं उसको डिसेबल कर सकता हूं? भाई बोलो यार, एक बंदा करके कुछ बोले यार। ये जो ऐड नोटिफिकेशन आ रही है, क्या आप उसको डिसेबल कर सकते हैं? जी सर Yes, बिल्कुल। sir. कैसे करेंगे भाई? ये तो मैं करता हूँ, ये तो मुझे बताते हैं स्टॉप सीइंग दिस एड, पता नहीं 15 सवाल पूछना शुरू कर दिए मुझसे। आई एम अ यूजर, आई डोंट वांट टू टॉक भाई, मुझे पता नहीं क्या क्या बार बार कही जा रहा है। अच्छा, इसके बाद मेरे वेरी मच अनोइंग। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे फिर मैं देखूं, यार ये तो बहुत ओवरवेलमिंग सा हो गया। लेट्स डू दिस, ओके। मुझे होंडा अकॉर्ड ये चाहिए, शो फोन नंबर। मुझे फोन नंबर, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाई आई नीड टू क्लिक ऑन द बटन टू हैव अ फोन नंबर टू बी डिस्प्लेड। अगर ये इसलिए रखा गया है, ठीक है, ये फोन नंबर जो है क्लिक, और ये अब देखो 2-3 दफा किया तो फिर ये मेरे पास आ गया। अब लेट्स सी, इज इट गोना कीप हैपनिंग? यस। और मैंने तो फोन नंबर पे क्लिक किया था, मैंने कहीं और भी क्लिक नहीं किया था, ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। ये बार बार, अब मैं अब क्लिक कर रहा हूं, इसने क्या कर दिया, 2 दफा आपको अलाउ करता है फोन नंबर देखना, इसके बाद आपको कहता है साइन इन करो। तो पहला मेरा क्या मेंटल मॉडल इसने क्रिएट किया? मेरा मेंटल मॉडल इसने ये क्रिएट किया कि आई कैन क्लिक ऑन दैट बटन और शो मुझे फोन नंबर नजर आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं, मैं जिस हिसाब से हमारा सिचुएशन चल रही है, तो हमारी फैमिली एवरीथिंग इज, वर्क के साथ हर चीज मिक्स हुई हुई है, राइट? सो मैं भूल गया, मैं नंबर शंबर अपना कहीं और क्लिक कर दिया, और फिर दोबारा क्लिक किया, तो मैंने कहा क्यों, इससे पहले तो मुझे ये दिखा रहा था, अब नहीं दिखा रहा। तो इसने क्या कर दिया, मेरे मेंटल मॉडल को डिस्टर्ब किया एज अ यूजर। अब आई डोंट थिंक सो आई विल जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट? इनके साथ मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार कोई और कंपनी है जो इस तरह की डील कर रही होती है।
तो आप छोटी छोटी बातों पे अपने यूजर को क्या कर रहे होते हैं, अनॉय कर रहे होते हैं। तो इस तरह का अनॉय नहीं करना हमने अपने यूजर को, ठीक है। अब आते हैं हम बाइकिया पे। लेट्स ट्राई बाइकिया। इस पे देखते हैं कि बाइकिया पे क्या चल रहा है। यही वाला सीन करते हैं, आपको 3 सेकंड्स में बात पता लग रही है क्या हो रहा है। इतनी तेजी से भाई स्लाइड शो चल रहा है, मैं कहता हूँ यार क्या हो गया, स्लो डाउन कर लो। पता है क्या होता है इससे, कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, उनका सर चकरा जाता है अगर वो बहुत ज्यादा फास्ट एनिमेशन देखते हैं तो स्क्रीन पे। सो मेक श्योर जो आपकी ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये सारी चीजें हो ना, उसकी प्रॉपर गाइडेंस के साथ हो। जिस तरह वो एक्सेसिबिलिटी वाले पूरे डिफाइन करते हैं कि अगर आपने स्लाइड शो इस तरह दिखाने तो किस हिसाब से, किस स्पीड से दिखाने। और ये क्या हो रहा है, ये डिसेबिलिटी जो एक्ट होता है पूरे वर्ल्ड में चल रहा होता है, उसके बिल्कुल उसके खिलाफ जा रही है ये बात। इतनी फास्ट तरीके से ये लोग वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी देखते हैं, ये लिखा हुआ है बाइकिया इज अ लीडिंग हाइपर लोकल मार्केट प्लेस। आई डोंट नो व्हाट इज हाइपर लोकल मार्केट प्लेस, मुझे ये बताएं। एक बंदा है गांव वाला, सही है, गांव में रहता है। हम कराची के, हम बड़े शहरों के लोग हैं ना, तो हमें इंग्लिश पता होती है, सही है। अब गांव वाला बंदा, उसको किसी ने बोला तू है ना इस वेबसाइट पे जा और तू यहाँ पे बैठ के ना 4 पैसे कमा सकता है अगर तू इनकी प्रोसेस में चला जाए। अब वो बोलेगा भाई पाकिस्तान लीडिंग हाइपर लोकल मार्केट प्लेस क्या होती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये उर्दू में है कोई, इनकी वेबसाइट उर्दू में बनी हुई है? कैन समबडी हेल्प No, भाई, sir. आंसर करेगा। अब ये बताए ना, अब ये मुझे बताएं, अंग्रेजी हमारी कौन सी जबान है, मादरी जबान है? नहीं सही सर। सर। International. नो सर, नो सर। इंटरनेट। हाँ, अब मादरी जबान तो है नहीं हमारी, हमने किस पे बनाई हुई वेबसाइट है? अंग्रेजी में बनाई हुई। किन लोगों को टारगेट इंग्लिश में। भाई, हमारी अंग्रेजी भी ऐसी अल्लाह माफी दे हुई हुई है बेचारे। हम अंग्रेजी हम क्या करते हैं, थोपते हैं। आप जर्मनी में जाएं, मजाल है, मैं भी, मेरे दोस्त हैं यूके, अपना रशिया में और ब्राजील में। मजाल है आपने अंग्रेजी में, इवन इनकी अंग्रेजी की वेबसाइट में आधा भी मटेरियल है ना जो सारा रशियन में होता है। ये हाल है हमारे मुल्क का। तो सर, हाँ जी, सर तो फिर हम जो एटलीस्ट स्पेशली पाकिस्तानी है, तो फिर हम क्यों प्रीफर नहीं करते मतलब अपनी लैंग्वेज को, कि हमें भाई आप जो है बताएं, वो। मैं तो छोड़ चुका हूँ पाकिस्तान 2008 2002 में भाई, छोड़ के आ गया था मैं तो ये करना चाहिए ना, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैं रशियन भी भाई देखता हूँ, चाइनीज भी, अमेरिकन भी, और जो जापानीज है वो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में उनके कंटेंट होता है, जो भी भाई SCMS मुझे होता है ये उनका। बताएं, मुझे ये बताएं, 70% वहां पे अंग्रेजी नहीं बोलते, राइट? तभी तो जी, वो कामयाब है। एक मिनट, 70% पाकिस्तान में कोई अंग्रेजी तभी नहीं तो वो बोलते है, राइट? कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। 70% पाकिस्तान में अंग्रेजी नहीं बोलते, राइट? जो अंग्रेजी बोलते हैं वो बड़े शहरों के लोग बोलते हैं। आप इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर, कराची और हैदराबाद, ठीक है, या श्योर यही है ना सर। बड़े शहर, यही हमारे शहर हैं बड़े। इसके अलावा आप ये बताएं, जितने भी लोग हैं वो उर्दू भी बेचारे बोल लेते हैं टूटी फूटी, राइट? लेकिन वो अपनी जो सराइकी, मेमनी, गुजराती, सारी अपनी लोकल जबानें बोल रहे होते हैं, राइट? क्योंकि हमारा मुल्क का स्ट्रक्चर ऐसा है, जिस तरह इंग्लैंड का, इंग्लैंड में ये कि हर 10 किलोमीटर के बाद इनके अंग्रेजी का एक्सेंट ही चेंज हो जाता है, राइट? उनका हाल ये हुआ है। अगर आप किसी स्कॉटलैंड की इंग्लिश सुन लेना तो आपको समझ ही नहीं आएगी, पता नहीं वो मुंह में कोई, वो जिस तरह कराची वाले नहीं मुंह में गुटखा खा के बात कर रहे होते हैं, तो इसी तरह मैं भी कराची का हूं तो मैं कभी कभी मजाक उड़ा लेता हूँ। तो इसी तरह आपको लगेगा। अब ये बाइकिया का आप देखें, अगर एक बंदा है बेचारे ने काम करना है, वो आया है कोई चीचा वतनी के दूर पड़े के गांव से, सही है, अब वो शुरू कैसे करेगा? उसको किसी ने कहा ये वेबसाइट पकड़ ली, टैबलेट उसको किसी ने एंड्रॉइड का दे दिया, वो शुरू कैसे करेगा वो यहाँ पे आके? और आप इनकी एप्लीकेशन भी उठा के देखें, उर्दू में है कि नहीं है, मुझे नहीं पता उर्दू में है कि नहीं। इनकी वेबसाइट तो उर्दू में नजर नहीं है किसी की भी। देखें आप पाकिस्तान में जिसकी rosie.com.pk है, देखो, सबसे बड़ा यूएक्स का इशू बताऊं क्या है? हमारी मादरी जबान में हमने काम ही नहीं किया इसके ऊपर। भाई मैं मेमन हूं, उर्दू लैंग्वेज लेकर आया, मैं
iOS के अंदर, ठीक है, अगर आपने देखा हो ना, मैं मेमन हूं, मैं क्यों लेकर आया भाई, वो पाकिस्तान की जबान है। एंड आई थॉट, मुझे ये फील हुआ था उस वक्त कि मे बी ये लाने के बाद थोड़ी सी तब्दीली आएगी। कोई तब्दीली नहीं है। मेरे पास बताऊं कौन है, जर्मन बंदे जो उर्दू में काम करते हैं, उन्होंने अप्रोच की है, उनकी मैंने हेल्प की। वो जर्मनी से आए थे। एक अमेरिकन स्टेट से कोई बंदी आई थी, वो भी काम कर रही थी। और दूसरी बंदी कौन आई थी, दूसरा बंदा आया था चाइना से, जो सीपैक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो उर्दू की ऐप बना रहा था अपने चाइनीज भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में। एनीवेज, गोइंग बैक ऑन द अपना, इस पे आते हैं हम टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो यूएक्स का प्रॉब्लम है ना, वो अपनी मादरी जबान में होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, जब भी आपने कोई काम करना हो तो आपके पास जब भी मेक श्योर करें लोकल लैंग्वेज, और उन इसीलिए टारगेट पर्सोना जो होता है ना, उसकी लैंग्वेज को भी डिटेक्ट करेंगे। वो यार अंग्रेजी में कितना कंफर्टेबल है। नॉर्मली टिपिकली नहीं होते लोग, सही है, वो तो इनफोर्स हुआ है माशरे की वजह से, इसलिए उसके हिसाब से चल रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं और भी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिंक्डइन पे पोस्ट करता रहता हूँ काफी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज कम टू मी। और बिफोर आस्किंग मी क्वेश्चंस, ये मैंने पीडीएफ शायद मैंने तताहिर को दे दी है, शी विल शेयर इट यू। और मैं क्या करूंगा, 2 किताबें आप लोगों को, तताहिर गonna पिक अ विनर, मैं उनको ईपब या एमओबी वाली जो फाइल होती है वो सेंड करूंगा। तताहिर डू दी कुरानदाजी करें, जो भी करना है। तो जो 2 बच्चे हैं मैं उनको दे दूंगा फाइल। ओके, सो अगर अभी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो मैंने चैट बॉक्स में, हाँ हाँ, अभी है हमारे पास 10-15 मिनट, प्लीज गो अहेड। सर इसमें ऐसी कोई Excuse me. पॉसिबिलिटी है कि जब हम कोई ऐप या वेबसाइट डिज़ाइन करें कि उसी लोकेशन के हिसाब से उस जगह की, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में है तो वहाँ इंग्लिश डिटेक्ट कर ले, अगर पाकिस्तान में कोई वो उसको ये है। तो वो डिटेक्ट कर ले, उर्दू में हो जाए ऑटोमेटिकली ही। हाँ ये है, ये मैंने किया था अभी वेल्स फार्गो में काम, जर्मन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो वेल्स फार्गो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर हम फ्रेंच में अपनी, इनका जो कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस पोर्टल है, तो वो क्या होता है, वो बड़ा सिंपल सा होता है यार। आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, वो ये बता देता बंदा कहाँ से आ रहा है। तो पाकिस्तान का आईपी एड्रेस अलग होता है, आईपी एड्रेस की आप मैपिंग देख लें, पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप पता कर सकते हैं। अगर कोई खोल रहा है अमेरिका से, तो उसको इंग्लिश में नजर आएगी वेबसाइट। कोई पाकिस्तान से खोले तो उसको, अगर आपने सेटअप किया हुआ हो, तो ये पूरा आपको स्ट्रेटेजी लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा। सर प्लीज साथ साथ चैट बॉक्स भी देखें, यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, मैं फिर ये शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ऑलराइट, और एक मिनट, okay, we'll share at the end of session, and for Q please, okay, you can type your question. How important is the understanding UX? यार मैं ये कहता हूँ, आप डेवलपर अगर है ना, हसन जावेद का सवाल है कि ये इज इट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड यूएक्स फॉर डेवलपर्स? यस। बताऊँ क्यों? ताकि फिर आपकी कम्युनिकेशन यूएक्स वाले बंदों के साथ अच्छी होगी और आप उसके अच्छे फ्रेंड बनेंगे। और क्या होगा, आप उसको इंस्पायर करेंगे कि अगर वो यूएक्स का बंदा, उसने अगर उसको डेवलपमेंट नहीं आती, जिस तरह अभी बर्कले में क्या होता है, बर्कले में हम जो पढ़ाते हैं, तो आखिरी जो प्रोजेक्ट होता है, दे हैव टू कोड देयर ओन वेबसाइट। अच्छा, वो प्रोडक्ट डिजाइनर बनने आए, ठीक है, यूएक्स डिजाइनर बनने आए, आखिर में हम इनसे कोडिंग करवाते हैं। क्यों? इसका बड़ा सिंपल रीजन होता है, ताकि वो अंग्रेजी, जिस तरह अंग्रेजी में हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना अपनी जबान में, जो लोकल है यहाँ की, तो ये डिजाइनर होता है ना, डिजाइनर, उसकी जबान होती है डिफरेंट और डेवलपर की जबान होती है डिफरेंट। अब दोनों को जबानें सिखानी एक दूसरे की, तो वो आपस में कम्युनिकेट तो कर ले। वो बोले भाई मेरी सीएसएस में इश्यू आ रहा है। अब अगर डिजाइनर है जिसने कभी सीएसएस को हाथ नहीं लगा, वो बोलेगा पता नहीं सीएसएस क्या होती है, जो भी अभी जल्दी कर, वो बोलेगा 3 दिन में कर, 3 मिनट में कर ले। जबकि
डेवलपर बोलेगा भाई 3 घंटे लगेंगे, और वो कब इसके जहन में जाएगी, यूएक्स डिजाइनर के जहन में ये बात उस वक्त जाएगी जब यूएक्स डिजाइनर को आइडिया होगा कि सीएसएस क्या होती है, कैसे लिखी जाती है। इसी तरह अपना डेवलपर को ये बातें पता होनी चाहिए कि यार इन्होंने रिसर्च की थी, रिसर्च में ये चीजें हेल्प की थी। हम वेल्स फार्गो पे लोगों से जो डेवलपर्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ फीचर हम मिस कर जाते हैं, वो डेवलपर्स आते हैं, यार हमने क्यूए में ये फाइंड आउट किया, आप लोगों ने क्यों नहीं डाला। तो क्या कोलैबोरेशन जरूरी है, ठीक है। तो इसको मद्देनजर रखना है, और मैं कहता हूं अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, चैंपियन नहीं होना है। या अगर चैंपियन हो सकते हो तो वेल एंड गुड, राइट। डेवलपर एक डेवलपर सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था जी जी सर। अगर कोई डेवलपर है, फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, मतलब अभी पढ़ रहा हूँ वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, तो यूआई यूएक्स को हमें प्रेफर करना चाहिए या हम कोडिंग के थ्रू यूजर इंटरफेस को बनाएं और उसका एक्सपीरियंस, मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आती हैं जैसे जावास्क्रिप्ट होती है, उससे आप लैंग्वेजेस मतलब उसको यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करते हैं, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है या यूआई यूएक्स यूज करना ज्यादा बेटर अप्रोच है? अच्छा, ये सवाल बड़ा, इसको इस तरह करेंगे कि डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या यूए यूएक्स, सही। इसको इस तरह कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा बात समझाने में, क्लियर करने में। एक होता है इंजीनियर जो गाड़ी बनाता है, एक होता है जो गाड़ी का एक्सटीरियर बनाता है, डिजाइन करता है ऑटो कैड पे बैठ के, वो आपके फ्लोर पे ही नहीं आता। जो होता है ना मटेरियल से खेलता नहीं है, उसको खाली ये आइडिया होता है कि यार गाड़ी इस तरह होती है, इस तरह ये मटेरियल ये होता है, ये मटेरियल को मैं मोल्ड कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आईफोन है, आईफोन की खूबसूरत चीज क्या है, कौन बताएगा? सबसे बेस्ट चीज आईफोन में क्या है? मॉडल। सर वो कम्प्लीटली वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, इस वजह से एप्पल के पास User फुल interface. कंट्रोल है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का। दैट्स व्हाई एग्जैक्टली उसका एक्सपीरियंस बेहतर है। ये कौन बच्चा बोल रहा है, क्या नाम है भाई आपका, कौन सा? जो भी मैं जिसने भी बोला? हाँ जी, आप हाँ, उमर मेरा नाम। उमर भाई, बिल्कुल जबरदस्त। क्यों? क्योंकि वो आईफोन सिर्फ एक चीज नहीं है, वो इंटरफेस नहीं है, वो खाली इसका क्या स्विफ्ट यूआई, जो स्विफ्ट इसकी एप्लीकेशन है, पहले क्या था ऑब्जेक्टिव सी था, राइट। या हार्डवेयर नहीं है, हाँ इसकी जी, पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है, राइट। तो बिल्कुल। अब भाई इकोसिस्टम अगर अपने आप को, कौन जो इससे पहले बच्चे ने बात कही थी कि डेवलपमेंट के थ्रू हम करें या कोडिंग के थ्रू करें या टिपिकली सीख लें, तो भाई आप दोनों करें अगर पॉसिबल है तो। एक टर्म होती है, किसने वो टर्म सुनी है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन? हाँ जी, बिल्कुल सुनिए। आपको पता है? सुना हुआ सर, सुना हुआ। अच्छा, इसका दूसरा जुमला पता है आपको? हम लोगों को भाई गवर्नमेंट ने वो क्या हाँ जी दिया, सर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन इज समटाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। हाँ टिपिकली स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, कहां पे रुक जाते हैं, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, राइट। टिपिकली यहां पे आके रुक जाते हैं, पता है ना, विकिपीडिया पे यही लिखा हुआ है। लेकिन भाई वो क्या होता है, वो जो आंटी की मीम देख लें, वो गवर्नमेंट हमें पागल बना रही है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है बट ऑफ्टन टाइम्स बेटर देन अ मास्टर ऑफ वन। मतलब ये मेरे भाई, अगर आप इस एज पे दोनों चीजें सीख सकते हैं तो प्लीज सीखें, और अपने आप को पीछे ना करें। ये ना डिफाइन करें कि वो मैं अभी स्पेशलाइजेशन कर लूंगा सिर्फ यूएक्स में या डेवलपमेंट में। आपकी एज अभी ऐसी है, आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। मैं कहता हूं भाई जर्नलिस्ट आर बेटर देन स्पेशलिस्ट, ठीक है। स्पेशलिस्ट को जॉब के हवाले से, स्पेशलिस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू जर्नलिस्ट। तो आप डेवलपमेंट भी करें, आप यूएक्स यूआई दोनों सीखें, आप दोनों लॉज सीखें, दोनों की चीजें सीखें। रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट जेएस है, एंगुलर है, फ्लटर लैंग्वेज आई है गूगल की, स्विफ्ट यूआई आई है नई जो और इजी कर रहे हैं, वो भी सीखें। फिर आप है ना अपना क्या कहते हैं यूएक्स यूआई के रूल्स भी सीखें, उनकी पूरी बुक पढ़ें,
बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लॉ ऑफ यूएक्स, आपको मिनिमम आप अगर खर्चा भी करेंगे ना ये सब सीखने के लिए तो $50 से ज्यादा खर्चा नहीं होगा इफ यू गाइज आर डेडिकेटेड आउटसाइड ऑफ योर यूनिवर्सिटी टाइम, ठीक है। दैट्स माय रिप्लाई टू यू माय फ्रेंड। अच्छा, अब ये हम एक मोइज हसन साहब ने सवाल किया है, व्हाई आर पाकिस्तानी बिजनेस, या श्योर मैन, व्हाई आर पाकिस्तानी बिजनेसेस नॉट कन्विंस्ड दैट दे कैन हैव अ वाइडर आउटरीच इफ दे लॉन्च देयर प्लेटफॉर्म इन उर्दू। यार असल में ये जहनी गुलामी है और कुछ नहीं है, सॉरी टू से, और कुछ नहीं है हमारी, हम है ना जहनी गुलाम बने हुए। अभी मैं एक और शोर मचा रहा हूँ यहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता ढोल की बजाते ना हल्की फुल्की, कि मैं ये कहता हूँ यार हमने डिजाइन को क्या होता है, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन किया हुआ है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देखें जो बन के आता है वो लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज के लिए बन के आता है, यानी लैटिन लैंग्वेजेस के लिए। कभी भी RTL, राइट टू लेफ्ट लैंग्वेजेस के लिए बन के नहीं है। एक दफा मैंने ट्राई कर रहा था उर्दू की वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, UI किट पूरी मैं सोच रहा था बना दूं स्केच में, इट डिडंट वर्क वेल क्योंकि उन्होंने वो सपोर्ट ही नहीं की हुई थी। तो भाई वो भी हमारे पर थोप रहे हैं, हम कहते हैं आने दो भाई, क्योंकि हम बेहिस हुए हैं। सही, अगर हम अपने आप से बेहिस नहीं होंगे तो भाई सॉरी टू से ये फिर UX से बात आगे चली जाएगी, फिर हम कलेक्टिवली अपने आप को है ना वो ब्लेम कर सकते हैं कि हमने हमने खुद ही अपने आप को, यार मुझे तकरीबन 2012 से लेके 2017 ऑलमोस्ट 5 साल, ठीक है, या 5-6 साल लगे मुझे उर्दू को आईफोन पे लाने के लिए, ठीक है। 2017 में iOS 11 जब ऑफिशियली लॉन्च हुआ तो उर्दू अपने ओरिजिनल नस्तलीक टाइप फेस के साथ एप्पल आईफोन पे आई थी। इससे पहले मैं 2-3 और कंपनियों के पास गया था, सॉरी टू से इन पाकिस्तान के, मैंने उर्दू राइटर की ऐप बनाई है, प्लीज टेक अ लुक एट इट, मैं ये करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर है कराची में, उनके पास भी गया था मैं, बहुत बड़े वो आपका कंस्टोरियम बना हुआ है सॉफ्टवेयर हाउस का, उनके पास गया था। दे केम टू मी आफ्टर दे हर्ड कि मेरे को टिम कुक साहब ने कॉल किए तो उर्दू लेकर आएंगे। भाई हाँ, मैं ना जो फोटोशॉप के लिए आते हैं, फोटो क्या होता है, फोटो सेशन के लिए, असल में काम करने वाले जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो बड़ा, देयर आर सो मेनी पीपल आई नो, बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो फोटो सेशन के लिए काम नहीं करते हैं, वो फिर करते हैं पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो इसलिए भाई हमेशा काम पे फोकस रखना, ठीक है, और मेक श्योर के आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप ऐसा काम करें कि उर्दू लैंग्वेज है ना वो इस तरह इंपॉर्टेंट हो जाए जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी एप्लीकेशन पब्लिश होती है ना तो दे हैव टू मेक, अब पाकिस्तान, अब ये देखें एप्पल जब पब्लिश करता है, यानी कि हैरत की बात है एप्पल ने उर्दू नहीं रखी थी, ठीक है, हैरत की बात, इतनी बड़ी अरबी रखी थी, बाकी सारी रखी थी और उर्दू नहीं रखी थी, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को इतना स्ट्रांग करना चाहिए टेक कम्युनिटी को, उनकी टेक कम्युनिटी स्ट्रांग है तो वो वोकल है तो बोलती है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप लोग अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि यू हैव दैट काइंड ऑफ सेंस कि यार ये ग्लोबल विलेज है तो भाई फिर ग्लोबल विलेज के हिसाब से चलाओ, ठीक है। First 3 numbers of IP address shows the country code. Yes. Quiz will start after QA for developing a great UX. Which format we have to follow about content like formal, casual? ये depend करता है भाई मोहम्मद हुसैन सरवर साहब, टारगेट पर्सोना क्या है। मिसाल के तौर पर पटारी की ऐप है, पटारी की ऐप देखें, उनके बड़े फनी मैसेजेस होते हैं, सबसे घटिया ऐप है इनकी, उनको मैं 4 दफा कह चुका हूँ, मेरे और 2-3 आप ट्विटर पे जाके पढ़ लें, हम कंप्लेन कर चुके हैं कि हम सब्सक्राइब कराते हैं, हम विलिंग हैं, $5 पर मंथ देने के मैं तैयार हूं मैं, क्योंकि पाकिस्तान की कोई ऐप आके कर रही है, आई वॉन्ट टू गिव देम मनी। उनको हम 10 दफा कह चुके हैं भाई कि अपनी इंटरफेस, अपने एक्सपीरियंस ठीक करो, वो करते ही नहीं है, कहता हमारा सबसे बेस्ट बना हुआ है। मैंने कहा यार वो जो क्या है जुनेद अकरम क्या कहते हैं, खल्ली वल्ली, राइट, इस तरह वाला सीन है। अच्छा, आफ्टर क्विज आई विल अनाउंस, पाकिस्तान में मॉडल इंटरेस्टिंग चीज लगती है, ये क्या है भाई, ताहिर, अच्छा ये लिखा, हाँ फिग्मा भी करें क्योंकि फिग्मा इज वेरी पॉपुलर दीज डेज, ठीक है। उसमें फेसबुक हैज उर्दू, यस, वो उर्दू भी भाई वो उन्होंने मजबूरी में डाला है क्योंकि आपका डेटा चाहिए। सर दैट्स सर जी
दैट्स व्हाई यू लीव पाकिस्तान आई थिंक। नहीं भाई, मैं पाकिस्तान तो मुझे मौका मिला था जॉब का, मैं यहाँ पे भाई ऐसा नहीं आया था कि विजिट पे आया या जैसे आपने कहा, जैसे भी आपने कहा कि जो है वो आपने उनके पास गए कराची में अपना ओ नहीं, मैं भाई नहीं, मैंने जब ये चीज बनाई थी वो 2011-12 में बनाई थी, राइट, उर्दू राइटर, तब मैं पहुंचा था उनके पास। मैं अमेरिका तो 2002 में आ गया था भाई। ओह यार ठीक है। या वैसे सर आपका क्या करियर उसमें था कि आप पढ़ाई के लिए गए थे या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको कराची से जॉब के रिक्रूट लिए होने? कराची से जॉब के लिए तो भाई मैं ये करता था जिस तरह आप लोग रात को बैठ के टिकटॉक और सारे करते हैं ना, तो उस जमाने में जब कंप्यूटर शुरू हुआ था 95 में, तो हम यूज करते थे सिर्फ 40 आवर्स पर मंथ। इमेजिन दैट, 40 आवर्स पर मंथ का इंटरनेट लेते थे हम, ठीक है। और इस तरह यूज करते थे जैसे वो क्या होता है अपना ओ आबे क्या होता है, आबे हयात, नहीं थोड़ा सा पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो इस तरीके से हम इंटरनेट यूज करते थे। श्योर। हाँ, आबे हयात के छोटे छोटे आप समझ लें, आप एक गिलास के भी है ना, पता नहीं एक चौथा या एक, इसी तरह का हम पानी पी पी के गुजारा करते थे इंटरनेट का। तो सीन ये हो गया भाई कि मैं ऑनलाइन वो करता था। हाँ, आबे जमजम, यस, आबे हयात, आबे जमजम, यस। तो इंटरनेट का क्या होता है, फोरम था ऑनलाइन में, हेल्प करता था। तो एक बंदे ने कहा भाई हमारी हेल्प करेंगे आप? मैंने कहा हाँ भाई करूंगा। तो वहाँ फाइवर तो था नहीं, तो उनकी हेल्प करना शुरू कर दी मैंने। एंड गेस व्हाट, उन्होंने कहा भाई एक काम करें, आप हमारे पास आके जॉब करनी है। मैंने कहा यार अंधा क्या चाहिए, दो आंखें, बिस्मिल्लाह जी। तो उन्होंने कहा एक्सपीडिया में जॉब होगी। मैंने कहा ओ रियली, expedia.com, ठीक है। तो उन्होंने एक कंपनी बाय कर ली थी सैनोजे में, सैनोजे डाउनटाउन कैलिफोर्निया में। तो 2.5 साल वहां काम किया, उन्होंने बुला लिया H1B पे, फिर तब से यहीं पे हूँ। फिर इधर उधर घूमते रहे, ईवे इधर उधर सारी जगह पे। तो इस तरह भाई करियर शुरू हुआ था। माशाल्लाह। बट ये है कि आप अपने आप को एक काम करें, अपने आप को ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन फोरम में, स्टैक एक्सचेंज है और इधर उधर जो भी है आजकल जो चल रहा है, इंडी हैकर एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है, प्लीज इन्वॉल्व योर सेल्फ देयर एज वेल। मैं लिख देता हूँ इंडी हैकर, ठीक है, indiehackers.com। तो वहां पे अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका है ना आउटरीच होगा, एंड यू डोंट नो कि क्या हो आपके साथ, ठीक है। यू डोंट नो कि कोई भी अपॉर्चुनिटी कब भी आपके साथ आ जाएगी। लेकिन आपने काम करना है, नतीजे पे नजर नहीं रखनी है, लेकिन आपने काम करते रहना है जबरदस्त, और ये आपको मिलेगा रिजल्ट इसका, ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। अब है ना ताहिर को मैं 2 बुक्स दे दूंगा, बेसिक होगी, एक होगी बिल्कुल आपको, आई थिंक मैं देख लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। और एक और काम मैं ये करता हूँ कि ओके, मैं ताहिर को एक ट्यूटोरियल भी दूंगा फॉर एवरीवन, जितने भी ताहिर सेंड कर देगी। सही है ताहिर? Okay.